Hello, my dear students. Good morning to all. Now, in previous class we have studied let us practice 4.1. Now, today we will study what? Addition of 4-digit number with regrouping. Okay, addition. In previous class also we have studied addition of 4-digit number only, but that one without carrying over. Now, today we have to study with carry over. Regrouping ones. First of all, we have to study regrouping ones. After that, regrouping tens. After that, regrouping 100, and after that we will study regrouping 1000. Okay. Now add. How many digit number? 5000. 4 digit number. Ones, tens, 100, 1000. Okay. 1, 2, 3, 4. 5413 and 1239. Okay. Now write this number first. 5413. What is the place value of 3? Ones. Place value of 1 is tens. Place value of 4 is 100 and place value of 5 is 1000. Now here and 1239. So on the place value of 1 is 1000. So below 1000 you have to write 1239. Add means what we have to give there? Plus. Understood? Now always start from the ones, tens, 100 and 1000. Okay, ones. Now 3 plus 9. In 9 you have to add 3. 9 take 3 finger. 10, 3 finger over. 10, 11, 12. So 12 what we have to write? No need to write that 12 at once. 2 we have to write. What we have to write? 2. And this one we have to give what? Carry here in tens. Understood? Now 1 plus 1, 2, and 2 plus 3, 5. 2 plus 3, 5. Now 4 plus 2, how much? Now we have to add which column? 100 column. 4 plus 2, 6. After that, lastly we have to add 1000 column. Now 5 plus 1, 6. So your final answer is 6652. Understood? So add it this way always. So note down this one. Now regrouping tens. Okay, add 3157 and 3261. Second example, this one, same thing. Okay, write this 3157 and below that 3261. This is regrouping what? Tens. Now okay, 7 plus 1, 8. 7 plus 1 how much? 8. So we have to write here 8. Now 5 plus 6. In 5 you have to add 6. 5 plus 6. Take 6 finger and add that one. 5 plus 6 you will get here. 5 plus 6 how much? 11. 11 what we have to write? 1 and give carry. Now 1 plus 1, 2. 2 plus 2, 4. And 3 plus 3, 6. So 6480. Understood? Understood? So 3157 plus 3261 equal to 6480. Now see regrouping ones and 10. Look that, see, add 1269 and 4354. Ones and tens. We are studying regrouping of ones and 10. Okay. Now 9 plus 4. In 9 add 4. Take 4 finger. 10, 11, 12, 13. 13 what we have to write? 3. And this one we have to give carry in tens. Okay. 1 plus 6, 7. And 7 plus 5, 12. 1 plus 6, 7. 7 plus 5, 12. 12 what we have to write? 2. Give carry 1. Now 1 plus 2, 3. And 3 plus 3, 6. 3 plus 3 how much? 6. So write here 6. And 1 plus 4, 5. So 5623. Understood this one? So note down this one. Look at regrouping ones, tens and 100. So add 1484 and 2756. So 1484 first of all I have written. Now after that next number 2756. So here regrouping ones, tens and 100. Ones, tens and 100. Look that. Now 4 plus 6. 4 plus 6. Adding 4, 6. You will get there 10. 10 what we have to write? 0. You carry 1 in tens. Okay. 1 plus 8. Now 1 8 or 8 plus 1 9. 9 plus 5. 9 plus 5 how much? 14. 14 what we have to write? 4. Again you carry 1 here. Okay. Now 1 plus 4 5. And 5 plus 7 12. 5 plus 7 how much? 12. 12 what we have to write? 2. Give carry 1 in 1000. Now 1 plus 1 2 and 2 plus 2 4. So 4240. So understood this one? This example? In this way we have to, if carry is getting, then we have to give carry. Okay, write down. Now we have to study word problems. Tackling a word problem. Tackling or framing or building a word problem. How to, if word problem is given, then there are some 5 steps are there. You have to keep the 5 step in mind and then you have to solve the word problem. First step, read the problem and understand the question. Read the problem. Whatever the example is given, at first you have to read. यानी पढ़ना है तुम्हें एग्जाम्पल को एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन और तुम्हें समझना भी है. अंडरस्टैंड का मतलब समझना. एग्जाम्पल में क्या दिया है उसको पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा तो समझने की कोशिश करो उसमें. पहली स्टेप. सेकंड स्टेप,
फाइंड द इंफॉर्मेशन इन द प्रॉब्लम। इंफॉर्मेशन यानी एग्जाम्पल में किसके बारे में जानकारी दिया गया है। फाइंड द इंफॉर्मेशन इन द प्रॉब्लम, किसके बारे में जानकारी दिया है वो तुमको समझना है, क्योंकि हमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ये लेसन है, कंफ्यूज हो जाएंगे उसमें 4 एग्जाम्पल वर्ड प्रॉब्लम आएंगे एग्जाम में, तो फिर कौन सा है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई का है या डिवाइड का है। इसलिए हमें एग्जाम्पल को पढ़ना है, पढ़ने के बाद तुमको जानकारी किसके बारे में एग्जाम्पल में जानकारी दिया है उसको आपको फाइंड करना है। उसके बाद थर्ड स्टेप, थिंक द ऑपरेशन टू बी यूज। ऑपरेशन का मतलब यहाँ पर वही होता है 4 ऑपरेशन हमारे, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और क्या है, डिवाइड। अभी हमारा एडिशन ही चालू है और पढ़ना है हमें आगे के, ठीक है। थिंक द ऑपरेशन टू बी, ऑपरेशन यानी वो वाला ऑपरेशन नहीं है, दूसरा कोई ऑपरेशन नहीं है, यहाँ पर हमारा ऑपरेशन है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड का। सोचने के बाद, फाइंड होने के बाद, रीड करने के बाद तुमको फाइंड करना है प्रॉब्लम में क्या करना है, तो फिर बाद में थिंक का मतलब सोचना है, द ऑपरेशन टू बी यूज। थिंक यानी थिंक का मतलब क्या, सोचना। उस सोचने के बाद समझ में आता है ये प्लस का एग्जाम्पल है, तो उसके बाद सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व द प्रॉब्लम, एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। और लास्ट में अगर टाइम मिलता है तो उसको आंसर को हमें चेक भी कर सकते, चेक द आंसर, लास्ट स्टेप। सो रीड, फाइंड, थिंक, सॉल्व एंड चेक, दिस आर द 5 मेन स्टेप्स while solving a word problem. Reading, finding, thinking, solving and checking. Otherwise, okay, understood? These are the 5 steps. Now, sometimes you are getting that keywords. The keywords that are helpful in identification of the addition problem. कभी कभी एग्जाम्पल में ये वर्ड्स आने से डायरेक्ट हमें समझ में आते हैं, प्लस का एग्जाम्पल लेकर के, तो ये कीवर्ड्स है कौन कौन से, जैसा टोटल। एग्जाम्पल में अगर टोटल लिख के रहा डायरेक्ट हमको समझ में आता है ये एग्जाम्पल एडिशन का है करके, या फिर सम भी लिखा रहा तो भी प्लस ही करना है। एडेड टू, अगर ये भी वर्ड आता है उसमें तो प्लस करना है। कंबाइन का मतलब ये वर्ड भी आया तो प्लस ही करना है। ऑल टुगेदर, सब मिलाकर, उसमें भी प्लस ही आएगा। या फिर इन ऑल भी रहा तो यानी पूरे सब मिलाकर, उसमें भी क्या आएगा, आपको प्लस ही करना होगा। इसमें ये कीवर्ड है, टोटल, सम, एडेड टू, कंबाइन, ऑल टुगेदर, इन ऑल। कभी कभी वर्ड प्रॉब्लम में ये वर्ड्स आते हैं उसमें, समझ में आए। सो नोट डाउन दिस वन। फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम, फर्स्ट एग्जाम्पल, मिस्टर लाल purchased a washing machine for rupees 6,468 and a geyser for rupees 2,600 from a shop. How much money does he have to pay for both the article? पहला स्टेप क्या था हमारा, रीड, तो हमें एग्जाम्पल रीड करना है, ठीक है। उसके बाद हमें समझना है क्या है। सेकंड स्टेप इज व्हाट इज दैट, फाइंड द इंफॉर्मेशन इन द प्रॉब्लम, किसके बारे में जानकारी दिया है। समझो इसको, मिस्टर लाल डायरेक्ट मत लिखो, ये वर्ड प्रॉब्लम कभी भी सेंटेंस में लिखना है, डायरेक्ट करेंगे तो फुल मार्क नहीं आएंगे, इसलिए सेंटेंस में लिखना बहुत जरूरी है। मिस्टर लाल परचेज्ड ए वॉशिंग मशीन, यानी मिस्टर लाल नाम का व्यक्ति ने उसने परचेज का मतलब क्या होता है, खरीदना। ए वॉशिंग मशीन, क्या खरीदा है उसने, वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन मतलब क्या होता है, कपड़े धोने वाली मशीन, कपड़े धोने की मशीन, ठीक है। उसका कपड़े धोने की मशीन का प्राइस दिया है, क्या है, 6,468। अगर हम कोई दुकान में जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, कोई चीज खरीदते हैं तो उसके लिए पैसे भी देना पड़ता है ना। हाँ, तो ये किसकी प्राइस है, वॉशिंग मशीन की, कितना है, 6,468। एंड ए गीजर का मतलब जो पानी गर्म करने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है, पानी जिसमें हम पानी डाल के गर्म करने से वो पानी गर्म हो जाता है फिर नहाने के लिए ठंडी के दिनों में वगैरह, उसका प्राइस दिया है 2,600। ये किसका प्राइस है, 2,600 गीजर का, ठीक है। फ्रॉम ए शॉप, ये कहाँ से खरीदा है मिस्टर लाल ने, यानी शॉप का मतलब दुकान में जाकर ये 2 चीजें खरीदे। कौन कौन से 2 चीजें, वॉशिंग मशीन और गीजर। अभी हाउ मच मनी डज ही हैव टू पे फॉर बोथ द आर्टिकल, बोथ यानी क्या है यहाँ पर, वॉशिंग मशीन और गीजर, ये 2 चीज खरीदने के लिए मिस्टर लाल को कितने पैसे देना पड़ेगा। आर्टिकल का मतलब चीजें, सामान, ये 2 सामान खरीदने के लिए मिस्टर लाल को कितने पैसे देना पड़ेगा वो फाइंड करना है। तो क्या दिया है, सबसे पहले ये क्या है, 6,468 किसकी प्राइस है, वॉशिंग मशीन। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ, पहली स्टेप, कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन इक्वल टू ₹6,468 गिवन। इन द सेम वे कॉस्ट ऑफ, ये किसकी प्राइस है, 2,600 गीजर की, कॉस्ट ऑफ ए गीजर इक्वल टू ₹2,600, ये भी दिया है। अभी फाइंड क्या करना है, हाउ मच मनी डज ही हैव टू पे फॉर बोथ द आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ बोथ द आर्टिकल, आर्टिकल्स का मतलब सामान, वॉशिंग मशीन और गीजर, क्वेश्चन मार्क। सेम सेंटेंस, कॉस्ट ऑफ बोथ द आर्टिकल इक्वल टू कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन प्लस कॉस्ट ऑफ गीजर, ₹6,468 प्लस ₹2,600। अभी इनका रफ में करना है, साइड में करो इधर। नाउ राइट हियर 6,468 प्लस, तो प्लस ही करना है ना इसमें, समझ में आया, प्लस ₹2,600। नाउ 8 प्लस 0 8, नाउ 6 प्लस 0 6, 4 प्लस 6 10, कैरी 1 गेटिंग हियर,
Now 1 plus 6, 7. 1 plus 6, how much? 7. Write here properly. Here this is 6 and 1. Okay, इसके ऊपर 1. 1 plus 6, 7 and 7 plus 2, 9. So मिस्टर लाल को कितने पैसे देना पड़ेंगे दोनों चीज खरीदने के लिए? 9068 रुपीज. 9068 समझ में आया? 9068. क्या क्या खरीदने के लिए इतना खर्चा आया है मिस्टर लाल को? वो एक वॉशिंग मशीन और एक गीजर के लिए. अगर वो दो चीजें खरीदता है दुकान में जाकर तो इतना पैसे उसको देना पड़ेगा. 9068. Understood? So note down this one. To look that a town had 4,568 men, 3,942 women and 1,420 children. What is the total population of the town? What is the total population of the town? Here keyword K. Total means what we have to do? Three numbers. Here three numbers are here. 1, 2, 3. Total keyword. So plus we have to do. Okay. Now what is the a town had 4,568 men. यानी एक गांव में 4,568 मैन यानी पुरुष आदमी लोग रहते थे. एक गांव में इतने कौन रहे हैं? ये किसका नंबर है? 4,568 मैन एंड 3,942 वुमेन. वुमेन यानी महिलाएं, औरतें इतने रहते थे. 3,948. गांव बोलने से उसमें मैन भी आते हैं, वुमन भी आते हैं, चिल्ड्रन भी आते हैं, ना? आदमी, महिलाएं, बच्चे सभी आते हैं उसमें. एंड 1,420 चिल्ड्रन यानी इतने बच्चे हैं. व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन? फिर उस टाउन का टोटल पॉपुलेशन कितना है? तो इन तीनों का क्या करना पड़ेगा? कीवर्ड है. कीवर्ड हमने लिख के दिया था मैंने. टोटल, ऑल टुगेदर, इन ऑल, ये वर्ड आए तो प्लस करना है. तो कभी भी टोटल आए तो उसको अंडरलाइन कर लेने का उसमें वर्ड प्रॉब्लम में फिर समझ में आता है हमें प्लस का करना है. ये क्या है? सबसे पहले ये नंबर 4,568 क्या है? मैन. इसलिए हम लिखने का नंबर ऑफ मैन इक्वल टू 4,568 गिवन. दिस नंबर सेकंड 3,942. What is that? Women. So number of women equal to 3,942. This also given. ये सब कुछ एग्जाम्पल से मिलते हैं हमें, वही लिखना है. और ये थर्ड वाला क्या है? 1,420 क्या है? चिल्ड्रन. So number of children equal to 1,420. This also given. So what we have to find here? Total population of the village. Okay, total population of the village equal to question mark. Again same sentence, total population of the village equal to. So we have to add these three number. Number of men plus number of women plus number of children. 4,568 plus 3,942 plus 1,420. So we have written. Now we have to find here answer. It is not possible directly we will get here answer. So rub. We have to arrange these three number in column wise and we have to find the answer column wise. So सबसे पहले ये नंबर लिखने का 4,568, उसके नीचे 3,942 और उसके भी नीचे 1,420. तीन नंबर है इसलिए तीन नंबर का एडिशन एक साथ हम कर सकते हैं. तीनों नंबर 4 डिजिट के समझ में आया? फिर 1, 10, 100, 1000 ऐड करेंगे ना. 8 plus 2 टेल मी. 8 plus 2 10. 10 plus 0 10 isn't it? 10 का क्या लिखेंगे हम? 0. कैरी आया यहाँ 1. 8 plus 2 10. 10 plus 0 10 only. 10 का 0 लेके 1 कैरी. now 1 plus 6 7 and 7 plus 4 11. बराबर है? 7 plus 4 11. 11 plus 2 13. 11 plus 2 how much? 30. Okay. 13 का 3 carry 1. Now 1 plus 5 6 and 6 plus 9 15. 15 plus 4 19. 15 plus 4 19. 19 का 9 फिर से carry 1. Now 1 plus 4 5. 5 plus 3 8 and 8 plus 1 9. So total population of the village is 9,930. So we have to write here 9,900 what? 30. समझ में आया? Hence total population of the village is 9,930. So note down this one. Now homework, look at textbook page number 245, 246 and 247. That you have to complete that one. Now let us practice 4.2, 1 to 13 and let us practice 4.3, 1 to 8. Now open your textbook page number 245. What it is given, look at. Find the sum. You have to add 1, 10, 100, 1000. Sum. Today we have studied addition with carry over. We have studied no. Sometimes you will get here carry. Do give carry properly. Understood? This 1 to 13 example you have to complete. Let us practice 4.2 and let us practice 4.3. Two word problem I explained, isn't it? Now 1 to 8 example you have to complete. Word problem. Try to write in sentence.
You will get all examples are plus only. So try that one. Okay.